Anyway, so we start with the subject, and as you know that we are going to talk about this basic knowledge known as astrology. And this is such a knowledge which I think there's a lot of confusion amongst the persons ki what is this knowledge. And for most of the people, it is still a mystery. और आप देखेंगे कि the people call it by different names. Some people they say it is a witchcraft. Some people they may say it is fatalism. ये आपको भाग्यवादी बनाता है. It's a very bad subject, very bad knowledge. Some say it's the card shuffling. Some say it is an occult subject. Why should we go into that? But the people who have read this knowledge or who have a knowledge about this subject, they say it's very, very useful knowledge. It can play a wonderful role in our life on day-to-day basis also. And whatever may be the reason, whatever you call it, the fact is something else. The fact is that each one of us, and I'm not talking in India alone, but almost everyone on the earth, at one or the other time approaches an astrologer or the fortune teller to know that what is in store for him or her. That is the actual fact of the life. हम लोग कितना भी कहें कि कैसा सब्जेक्ट है, किस टाइप का है, लेकिन जो फैक्ट यही है कि हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में एक किसी भी भाग्य वक्ता के पास जाता है पूछने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या है. और बहुत से हम लोग टीवी इंटरव्यूज होते हैं, काफी लोगों से बातचीत होती है, एंड एवरीबॉडी सेज दैट इट्स नॉट ए साइंस, एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग दैट it is something intuition, it is not a science, it is an art, and all those things. And my basic question with all of them is, do you know the meaning of science? And surprisingly, all the so-called scientists, they are not able to explain the meaning of science. और अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, just see the dictionary, what is the meaning of science? Science says that any knowledge put in a systematic order is science. It doesn't say that it has to be 2 plus 2 is equal to 4. And in science also it never happens because the theories keep on changing. It will never happen in the science also. And it's simple definition, any knowledge put in a systematic order. अगर ऐसा नहीं होता तो हम शायद पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहते, सोशल साइंस को साइंस नहीं कहते, लीगल साइंस को साइंस नहीं कहते. बट डेफिनेशन इज समथिंग एल्स कि एनी नॉलेज व्हिच इज पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर कैन बी कॉल्ड साइंस. और ये ऐसा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का जो हजारों हजारों साल पहले लिखा गया, और जो कैलकुलेशन इतने साल पहले की या आज भी हम इस ज्ञान की वजह से कैलकुलेशन कर पाते हैं 100 साल 200 साल आगे की, वो साइंस से क्या कम है. तो अगर हम ये चर्चा छोड़ भी दें कि ये साइंस है या आर्ट है या क्या है, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट इट इज अ वेरी गुड नॉलेज, वेरी ओल्ड नॉलेज, ऑल पुट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. और जो डेफिनेशन है अबाउट दिस सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, जो भी हम बात करेंगे, it's a simple definition: the influence of stars on the human beings, influence of solar system on the human beings. और जहां भी मैं जाता हूं लोग पूछते हैं कि सोलर सिस्टम, प्लैनेट जो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो आपके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस उनका हो सकता है? इज इट पॉसिबल? एंड दिस से नो, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली. बट मैं उनको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज द टाइड्स इन द सी. और हम सबको बहुत छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि जो समुद्र में टाइड्स आते हैं उसका कारण क्या है. और ये हमको बताया गया कि जब सन और मून, जो दो प्लैनेट हम कंसिडर करते हैं, उनकी जब एक विशेष पोजीशन होती है, स्पेशल पोजीशन होती है, उसकी वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं. अब आप देखिए दो प्लैनेट, एंड यू जस्ट इमेजिन द मास ऑफ द सी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसकी लहरें 15-15 फीट ऊपर का उठ जाना, कितना फोर्स चाहिए उसके लिए, यू नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ.
but that is only because of the particular position of sun and moon when their gravitational pull combined on the earth. तो लोग कहते हैं आता होगा समुद्र में, but we are all humans, how we are concerned with the sea. और शायद कम ही लोगों को पता है, और ये फैक्ट है कि जो सॉल्ट, पहली चीज तो ये है कि हमारा जो बॉडी है दैट इज 70% वाटर, इट कांट बी डिनाइड एक्चुअली। और जो बॉडी के अंदर हमारे सॉल्ट्स हैं वो वही हैं जो समुद्र के पानी में हैं। एंड सरप्राइजिंगली, एंड व्हाट आई एम टॉकिंग इज ऑल ऑथेंटिकेटेड इन द साइंस। इसमें कुछ भी ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि जो किताब में लिखा हुआ है पता नहीं है या नहीं है, बट ऑल whatever I'm going to talk to you, we can all verify it actually, कि जो परसेंटेज है सॉल्ट्स का जो सी वाटर में है, वो ही परसेंटेज उन सॉल्ट्स का हमारी बॉडी में भी है। It's so wonderfully we are so related with the ocean. पहली चीज 70% हम पानी है, वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, और जो सॉल्ट्स हैं वो वही है जो समुद्र के पानी में है। और तीसरा जो परसेंटेज है सॉल्ट्स का, जो सी वाटर में परसेंटेज है, वही परसेंटेज हमारी बॉडी में भी है। अभी कुछ दिन पहले जब जॉन एफ कैनेडी जूनियर की डेथ हुई थी यूएसए में, तो देयर वाज ए न्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। So I started reading about that because the heading was that ashes of John F. Kennedy Jr. consigned to the sea. I was shocked कि USA में sea ashes को sea में consign करना क्या मतलब है। When I was reading that article, so they have given a reference of the speech of John F. Kennedy when he was the president, and that speech was of 1960. So I just started reading that speech, and I will just read out to you also, so that you know that whatever I'm saying is all validated. It speech says that all of us have in our veins the exact same percentage of salt in our blood that exists in the ocean. Just see, all of us have in our veins the exact same percentage of salts in our blood that exists in the ocean. And further it says we are tied to the ocean, and when we go back to the sea, whether to sail it, whether to sail or watch it, we are going back from whence we came. And ultimately they said that since we are the part of the sea, so that's why we consign our ashes to the sea. तो वहां भी ये जो भी बात हुई ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो सॉल्ट्स हैं सी वाटर में वही सॉल्ट हमारी बॉडी में भी है, और जो उनका परसेंटेज है वो एग्जैक्टली सेम परसेंटेज है जो हमारे बॉडी के अंदर है। तो जब एक सन मून की पोजीशन पूरी समुद्र में इतने बड़े मास में, जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें तूफान मचा सकती है, तो क्यों नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर जो है। और एक चीज और बताता हूं मैं कि अभी कुछ वर्ष पहले एक रीडर डाइजेस्ट मैगजीन आती है, आपको ध्यान है, उसमें एक आर्टिकल आया था कि डज द मून मेक अस मैड, and that was the heading of the article, and that was the research work of large number of naturalists, ecologists and psychologists. काफी साल तक इन लोगों ने रिसर्च की, इकोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, डज द मून मेक अस मैड। व्हाट दे डिड कि दे ऑब्जर्व्ड द एक्टिविटी ऑन द अर्थ on the day of Purnima. Purnima means when you are able to see the full moon. तो पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर उन्होंने एक्टिविटीज को एग्जामिन किया और फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, और जो कंक्लूजन थे वो कहते हैं, पहला था कि वायलेंस इंक्रीजेस अंडर फुल मून। जब आप किसी भी जब पूर्णिमासी के दिन देखेंगे या फुल मून के दिन देखेंगे तो वायलेंस ऑन द अर्थ इंक्रीजेस। और इवन जो पुलिस कंट्रोल रूम होते हैं वहां उन्होंने बहुत जगह ऑब्जर्वेशन किया, रिसर्च की, डाटा कलेक्ट किया, और पाया कि जो कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आती है पूर्णिमा के दिन,
वो और दिनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। और भी रिसर्च की कि जो ल्यूनर इन्फ्लुएंस है या जो सन का मून का मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, दैट हैज द influence on the menstruation cycle and the birth rate also. And ultimately they said कि life is full of adventure under full moon. Life is full of adventure under full moon. और उन्होंने कुछ मैचेस भी देखे, जैसे पर्टिकुलरली फुटबॉल हो, हॉकी हो, और कंपैरिजन किया कि जो मैचेस पूर्णिमा के दिन खेले गए थे और बाकी दिन खेले गए थे, जमीन आसमान का अंतर था। जो जोश था खिलाड़ियों में पूर्णिमा के दिन, वो किसी भी दिन के जोश के कंपैरिजन में इट वाज मच मोर, एंड दिस इज दे ऑब्जर्व, एंड दिस सेड वी हैव डन ए वंडरफुल रिसर्च, एंड सेम थिंग वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम 4000 इयर्स। कोई नहीं मानता, लेकिन जैसे ही इस टाइप के लोग रिसर्च करते हैं, वी फुली एग्री कि होता है। बट एस्ट्रोलॉजी जो ज्ञान है 4000 साल पुराना, उसमें बहुत पहले कहा कि जब पूर्णिमा का दिन होता है या अमावस्या के दिन होता है, और देखिए उसी दिन ये टाइड्स आते हैं, आइदर ऑन पूर्णिमा और अमावस्या, और जब पूरा का पूरा समुद्र, पूरा का पूरा ओशियन में तूफान आ जाता है, और उस दिन जब तूफान आता है तो हमारी बॉडी में भी तूफान आता है। हमारी बॉडी इज बैडली अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ सन एंड मून। और आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि जिनका मून वीक होता है, मून रिप्रेजेंट्स अवर माइंड एक्चुअली, तो जिनका भी मून अगर थोड़ा सा भी वीक होता है आपके हॉरोस्कोप में, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑन पूर्णिमा एंड अमावस्या। दे गेट वेरी डिस्टर्ब्ड ऑन दैट डे। और अगर हम ल्यूनेटिक लोगों की बात करें तो आप देखिए उनकी सबसे ज्यादा परेशानी उनको जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही होती है। और जिनका मून स्ट्रांग होता है, जब हमारा माइंड एक्टिवेट होगा पूर्णिमा अमावस्या के दिन, दे डू लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, दे डू लॉट ऑफ गुड वर्क। सो व्हाट आई मीन दैट व्हाट दीस पीपल सेड, वी हैव बीन talking I think since thousands and thousands of years back, but nobody is bothered actually. But when any psychologist, naturalist, ecologist, they talk about all these things, we immediately agree. अभी कुछ वर्ष पहले in February 2001, University Grant Commission, they issued a notification that all universities in India, they should introduce the courses in astrology. और ज्योतिष नहीं कहा, उन्होंने कहा ज्योतिर्विज्ञान। हिंदी में जब कहा तो ज्योतिर्विज्ञान में आप अपने अपने कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करिए। और कोर्सेज कहा ग्रेजुएट लेवल पर होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होने चाहिए, और रिसर्च लेवल पर होने चाहिए। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन इशू हुआ, पूरे देश में हंगामा हो गया, और लोगों ने बहुत बकवास की कि हमने अपने देश को शायद 150 इयर्स बैक ढकेल दिया सरकार ने। और कई साइंटिस्ट ने कहा कि दिस इज ऑल नॉनसेंस, इट इज नो साइंटिफिक वेज, सो व्हाई शुड वी टीच दिस सब्जेक्ट। बट व्हेन गवर्नमेंट डिडंट एग्री, देन द पीपल वेंट टू द कोर्ट। द मैटर वाज एग्जामिन्ड बाय Bombay High Court as well as the Supreme Court of India. And you know what was their observation? Supreme Court said that astrology is a trusted science. You cannot stop introducing the courses in this knowledge. और उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया था, उसका भी जजमेंट में उसका मेंशन किया, और ये कहा कि जो एफिडेविट जो गवर्नमेंट ने दिया था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 year old trusted science. This is what Government of India said, and this was agreed to by the Supreme Court. और उसी का परिणाम है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी लोगों ने सीखना शुरू किया। एक अवेयरनेस आई लोगों के मन में कि ये राइट नॉलेज है, हमें सीखना चाहिए, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और उसी की वजह से अब कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं इस ज्ञान के बारे में। तो ये चीज है कि जब हम कोई हमको और दूसरा बताता है या कोई और रिसर्च करने के बाद बताता है तो हम लोग एग्री करते हैं। बट जो एस्ट्रोलॉजी
सालों सालों से कहे जा रही है, बट हम उसको एग्री नहीं करते। ये सिर्फ एक यही रीजन है क्योंकि हम लोगों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो एक अवेयरनेस जो होनी चाहिए इस ज्ञान के बारे में वो नहीं है। पर्पस यहाँ पर क्लास का या सेशन का यही है कि आपको इस ज्ञान के बारे में बताया जाए, और ये बताया जाए कि इसका हम कैसे यूज करके हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ वी कैन बी मोर एफिशिएंट, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज अवर रिसोर्सेस। और जैसे मैंने कहा कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारा जो सन और मून का इन्फ्लुएंस होता है हमारी बॉडी पर सबसे ज्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में आप देखिए अष्टमी का दिन, जब मून इज ऑफ हाफ ऑफ द साइज, that is the day when we are uninfluenced by the forces of sun and moon. Our body is totally uninfluenced by the outside forces. क्या अर्थ हुआ कि हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है उस केस में। तो जो भी हम लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन करने हैं या कोई भी हम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, और इवन अगर suppose you are suffering from some problem and you want to start a medicine, you start the medicine on the Ashtami day and you see the effect of that will have a wonderful effect on your body, because उस time हमारा जो body है वो outside forces से बिल्कुल भी influenced नहीं होती। तो इसलिए जो भी important decision आपको लेने हैं, why you go for पूर्णिमा and अमावस्या, you go for day of Ashtami। और जैन धर्म में तो इसका बहुत अच्छी तरह पालन किया गया, और जितने भी जो जैन धर्म के लोग होते हैं उसमें कहा गया कि आपको अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पानी नहीं पीना, एंड नॉट ओनली पानी बट यू नीड नॉट टू ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स। और टोटली मनाही होती है कि जो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाने चाहिए आपको अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। उसका रीजन सिर्फ यही है कि अष्टमी के दिन हमारी बॉडी टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड है बाय द आउटसाइड फोर्सेस। तो अगर हम पानी पिएंगे या ग्रीन वेजिटेबल के थ्रू हमारा वाटर कंटेंट जाएगा तो हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस होगा। और चतुर्दशी के दिन मतलब नियरेस्ट टू पूर्णिमा और द अमावस्या हम ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, तो अगर हम और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, इफ वी ऐड वाटर इन आवर बॉडी then it will have a bad influence। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से इस नॉलेज को यूटिलाइज किया। और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको लाइफ में, आप लीजिए अष्टमी के दिन, एंड यू सी द डिफरेंस, दैट विल बी द रियल राइट डिसीजन फॉर यू। और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। आप देखते हैं कि जो मूवमेंट है, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, और जो सन और अर्थ का डिस्टेंस होता है वो जुलाई में सबसे ज्यादा होता है, और सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज मिनिमम इन द मंथ ऑफ जनवरी। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो एनर्जी हमें सन से मिलती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज अबाउट 7% मोर देन व्हाट वी गेट इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप देखते हैं पृथ्वी पर क्या हालत होती है। जो एक तो एस्ट्रोलॉजी में प्रिंसिपल है कि द चिल्ड्रन born in the month of January, they are physically stronger than the children born in the month of July. That is a simple principle of astrology based on the distance between the sun and the earth actually, because in January we get more energy from the sun. इसके अलावा देखिए जितने भी वायरस वगैरह जो होते हैं अर्थ के ऊपर आजकल के टाइम में होते हैं, आजकल सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, हर साल नए नए वायरस आते हैं, एंड वी ऑल सफर ड्यूरिंग दिस टाइम। बट अगर आप नवंबर से मार्च तक का टाइम देखें तो इट्स नोन एज ए हेल्दी सीजन, कि उस टाइम जो है बीमारियां सबसे कम होती हैं पृथ्वी के ऊपर, एंड इवन द डॉक्टर्स से दैट number of patients are very less because this is a healthy season। तो हेल्दी सीजन का रीजन सिर्फ यही है कि उस टाइम जो सन और अर्थ का डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है और हमको सन की मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। अब वैसे भी देखिए कि अगर आप किसी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में रहते हैं, अगर वहां सन की लाइट आती है
और एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जहाँ सन की लाइट नहीं आती। यू सी द डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ दिस टू फैमिलीज। आप देखेंगे कि जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है वहाँ बीमारियां सबसे कम होती हैं, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ती वहाँ बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। और वैसे भी एक एस्ट्रोलॉजी में सिंपल प्रिंसिपल है, और हम लोग सब जानते भी हैं कि जब भी सन जो है नई राशि में एंटर करता है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट राशिज एंड ऑल दोस थिंग, बट आई एम जस्ट general thing I'm telling you, whenever the sun enters a new sign of the zodiac, we celebrate in the form of Sankranti. और 12 राशियां होती हैं, 12 साइंस हैं जोडियक के, और जब भी सन किसी भी नई राशि में एंटर करता है तो उसको हम एक संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इज नोन एज ए संक्रमण, जैसे सन का, या मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन। और आप देखिए कि हम लोग एज ए लेमैन जो जानते हैं वो तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो ओनली अबाउट वन संक्रांति, दैट इज मकर संक्रांति, एंड नोबडी नोज कि 11 संक्रांतियां और भी हैं, बट जिनको नॉलेज है वो सब संक्रांतियों पर वही काम करते हैं जो मकर संक्रांति पर भी करते हैं। और उसमें सेलिब्रेशन का जो रीजन है कि हम मकर संक्रांति को इतने जोर शोर से क्यों मनाते हैं, one reason, and the scientific reason, is because at that time sun is nearest to the earth. We get the maximum energy from the sun, and sun को हमने God कहा, ईश्वर कहा, इसलिए कहा कि because our existence is only because of this planet, because of the energy we get from the sun. अगर sun नहीं निकलेगा तो our life, we can't sustain our life. तो जब sun nearest है अर्थ के, गॉड है हमारे बहुत पास में आया हुआ है, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है, हमारी हेल्थ अच्छी है, और हमारी फसल भी उस टाइम बहुत अच्छी होती है, तो वी सेलिब्रेट इट in the form of Makar Sankranti. We give the special significance to this Makar Sankranti, and Makar Sankranti means that when the sun enters the Makar Rashi or the Capricorn sign. और दूसरा रीजन जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है वो I don't know whether you know it or not, कि मकर संक्रांति के दिन जो है उत्तरायण की शुरुआत होती है। एस्ट्रोलॉजी में जो साल को हमने 6 मंथ्स में डिवाइड किया, वन इज नोन एज उत्तरायण एंड अनदर इज नोन एज दक्षिणायन। उत्तरायण कहते हैं कि जब सन कैप्रिकॉर्न साइन से जेमिनी साइन तक मूव करता है 6 महीने का समय, उसको उत्तरायण कहते हैं, और बाकी के समय को हम दक्षिणायन कहते हैं। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, महाभारत पढ़ा होगा, जब भीष्म पितामह जब बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं और उनको वरदान था कि अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्याग कर सकते हैं, वो प्राण त्याग नहीं कर रहे थे, ही वाज सफरिंग ऑल द वे, एंड व्हाट ही वाज वेटिंग फॉर, अगर आपने ध्यान से सीरियल को देखा है, ही वाज वेटिंग फॉर उत्तरायण टू स्टार्ट, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी द ऑस्पिशियस टाइम in our this knowledge, Uttarayan. He waited, he suffered actually, but he wanted to live his life only when the Uttarayan will start. That is the time of Makar Sankranti. Makar Sankranti के दिन उत्तरायण की शुरुआत होती है। रामायण में आपने देखा कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है, he used to sleep for 6 months and used to get up for 6 months. और हम लोग समझते हैं कि शायद बहुत बेवकूफी करता था, बेवकूफ इंसान था। नो, was highly learned person. He had a great knowledge. और जो उत्तरायण का समय हुआ करता था 6 महीने, when we say that it is an auspicious time, he used to work. और जो inauspicious time है 6 महीने का, उसमें सोया करता था। There cannot be a better management guru than Kumbhakarna, and that indicate that optimization of resources was important at that time. इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो अच्छा समय है उसको आप पूरा यूटिलाइज करिए, और जो खराब समय है उसमें आप आराम करिए। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। और भी अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ दिन पहले एक डेली टेलीग्राफ जो एक लंदन से पब्लिश होता है, उसमें एक आर्टिकल आया था, और उसमें भी जो इंश्योरेंस कंपनी है बहुत रिसर्च हुई, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ड्राइवर हैं
having a sign as Aries, they are more rash in action. They are the people who have the maximum number of accidents. और उसकी बहुत चर्चा हुई कि हम जो एरिस साइन के लोग होंगे उनका इंश्योरेंस करने में वी हैव टू बी केयरफुल, इंश्योरेंस में बी कॉस्टली फॉर देम। और ये चीज तो हम बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की कि एरिस साइन का लॉर्ड मार्स होता है और मार्स के जो है मार्स इज वेरी रैश इन एक्शन। दिस इज द बेसिक एबीसी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। उसके लिए इतनी रिसर्च करने की जरूरत क्या है, तुम जानते हैं। अभी सरप्राइजिंगली आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इन चाइना एनी वन एडवर्टाइजिंग कंपनी they gave the advertisement for recruitment of certain personals, and you know what they wrote? They wrote that Virgo sign people need not apply for this post. The word is going to that extent in utilizing this knowledge. They specifically mentioned that the Virgo sign people need not apply because Virgo sign people, they are very fussy, they are perfectionist. They want everything in order, so they keep on criticizing कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, and that has an adverse effect on the efficiency of other persons. तो हम वर्ड की बात करते हैं तो we go to that extent also. और साइंस की बात करते हैं कि साइंटिफिक है नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी में हम we give importance to theory of karma कि whatever we reap, whatever we sow, we reap that actually. जो हम बोते हैं वही हमको मिलता है. And this is perfectly in principle with the scientific philosophy of the cause and effect relationship. जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी यही कहता है कि whatever you do, you will have the reaction, equal and opposite reaction of that. So this principle of theory of karma is completely in line with the scientific philosophy. अब मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि how we are utilizing this knowledge, और we are doing it in the entire world, और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, but nobody knows and nobody even agreed for this कि हम ये knowledge astrology की है, but this is a fact. मैं छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दूंगा so that this knowledge becomes more clear to you. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले he writes the word RX. I ask 100 of doctors what is the meaning of RX. Nobody knows. Somebody says Latin word, so say some is a Roman word or some Italian word and all those things. But nobody could explain why everybody on the earth, every doctor on the earth, in the entire world, before writing the prescription, they write RX. और शायद हमने भी नहीं सोचा होगा कि ये RX लिखने की जरूरत क्या पड़ी यहाँ पर. And why everybody on the earth is writing? अगर मैं इंडिया में बात करूँ या एक पर्टिकुलर सिटी में बात करूँ, then it is okay. But when the entire world is writing, it means it has to do something. कुछ ना कुछ ये important चीज है. And you will surprise to know this is nothing but a symbol of Jupiter in astrology. और Jupiter जो planet है astrology में, we call it a guru, we call it a god. We seek the blessing of guru, we seek the blessing of God, as we do in all our religions. जो भी हम कोई भी काम करते हैं तो लिखते हैं अपने भगवान का नाम याद करते हैं. But this is a general term which can be used by anybody on the earth, and everybody is using. आप किसी से पूछ लीजिए, but कोई बताएगा नहीं. I can show you the sign of Jupiter which I just downloaded from the internet. This is the sign of Jupiter in astrology. Or just for the sake of simplicity, just put a line here, so it becomes RX. It becomes RX. और सिंपल सी बात है, कोई उसमें बुराई भी नहीं है. We always seek the blessing of our guru. कोई भी हम शुभ काम करते हैं, कोई भी हम अच्छा काम करने जा रहे हैं,
या हम इवन मेडिसिन लिखने जा रहे हैं तो वी सीक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि ये आदमी क्योर हो जाए जल्दी से जो है। और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। यू गो टू एनी डॉक्टर इन द वर्ल्ड, ही विल राइट RX बिफोर राइटिंग एनी प्रिस्क्रिप्शन, बट नोबडी विल टेल यू कि ये एस्ट्रोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, क्योंकि नॉलेज नहीं है, किसी को पता नहीं है, और डॉक्टर को भी नहीं पता कि क्यों लिख रहा है वो। बट इट इज अ सिंपल केस ऑफ seeking the blessing of God as we everyone do actually. आप हॉस्पिटल में देखिए, अब जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं या आप कभी भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर अच्छे खासे कपड़े पहनता है व्हाइट कलर के, बट एज सुन एज ही एंटर्स और शी एंटर्स इन द ऑपरेशन थिएटर दे चेंज द क्लोथ्स, और क्लोथ भी किस कलर के चेंज करते हैं, दैट एवरीबॉडी नोज, ग्रीन कलर के। और पूरी दुनिया में करते हैं, यहाँ कोई एम्स की या कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। बट डज एवरीबॉडी नो दैट व्हाई दे आर डूइंग दिस, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस, व्हाई कांट दे वियर द डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स, why everyone is wearing only green colored clothes? किसी ने सोचा नहीं, ना ही किसी को पता भी है, बस कस्टम है कि हमें जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में एंटर करना है, डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो ग्रीन कलर के कपड़े पहन लेगा विदाउट नोइंग कि व्हाई वी आर वियरिंग। लेकिन आप ध्यान करिए कि जब हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे कि ग्रीन कलर इज कलर ऑफ प्लैनेट मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं हिंदी में। ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ द प्लैनेट मरकरी। मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट्स योर नर्वस सिस्टम, इट रिप्रेजेंट्स योर नर्वस सिस्टम। और जब हम ऑपरेशन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो व्हाट इज द नीड फॉर द डॉक्टर? डॉक्टर हैज टू कीप his or her nervous system under control. He can neither be too fast or nor too slow. His nervous system has to be under control. और हमने प्लैनेट मरकरी की मदद ली उसके लिए, और पूरी दुनिया ने ली, लेकिन ना पता है किसी को, ना जानते हैं, ना बताता है कोई भी जो है। लेकिन जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट मरकरी हम दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और बड़ा यूजफुल तरीके से कर रही है, और दे आर सॉल्विंग देयर पर्पस। बट जहाँ जैसे एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्यों, व्हाई दिस नॉलेज शुड बी देयर एक्चुअली। अब कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वकील हो, जज हो, तो सब लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, कोई दूसरे रंग के नहीं पहनता, और सभी जगह पहनते हैं। Question is why the black color? Why not any other color? And they can wear different colored clothes in each court. What is the harm in that? आप जब पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, then you will see that this is the color of the planet Saturn. शनि का कलर है, काला रंग जो है। शनि is a planet of, first it is a planet of justice. Second, it is a planet for the delay also. इस हर काम देरी से कराता है, जल्दीबाजी नहीं करता मंगल की तरह जो है। तो हर काम आपका धीरे धीरे होता है एक्चुअली। दैट इज द रोल ऑफ शनि, एंड शनि वांट्स दैट जस्टिस शुड बी डन, इनजस्टिस ना हो किसी को भी जो है। तो हमने शनि की हेल्प ली, सैटर्न की हेल्प ली, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना शुरू किया कोर्ट में। पहले तो इट शुड बी एंश्योर्ड दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड, एंड सेकेंडली ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में हम कोई डिसीजन ले लें। ये क्वेश्चन ऑफ अगेन लाइफ एंड डेथ ही है लोगों का। अब कोर्ट में जा रहा है तो पता नहीं कितना स्टेक इन्वॉल्व है उसके अंदर, और अगर हम जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे तो इनजस्टिस हो सकता है किसी के साथ में। तो हमने दोनों चीजों का ध्यान रखा कि फर्स्ट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड, एंड देयर शुड नॉट बी एनी हरी इन मेकिंग द जजमेंट। ईच एंड एवरी फैक्ट शुड बी अंडरस्टूड, देन ओनली द जजमेंट शुड बी मेड। नॉट इट्स नॉट ए मैटर ऑफ हरी कि आप जल्दी जल्दी आप जजमेंट कर लें। तो हमने जो है उसको शनि की या जो ब्लैक कलर की क्लोथ्स है उनकी हेल्प ली हमने।
आपको अगर ध्यान है कि दिल्ली में कुछ साल पहले जब प्राइवेट बस सर्विस ऑपरेट हुई थी, तो रेड कलर की बस सर्विस चली थी, रेड लाइन जिसको हम बोलते थे। और जैसे ही रेड लाइन की बस सर्विस शुरू हुई, फ्रॉम द नेक्स्ट डे लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स वर देयर ऑन द रोड। और रोज खबर आती थी न्यूज़पेपर में कि आज इतने एक्सीडेंट हुए, रेड लाइन बस ने इतने एक्सीडेंट कर दिए। एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन टू बैन द रेड लाइन सर्विस। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करें कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड टू बैन दिस सर्विस, एंड इट वाज बैंड एक्चुअली, कि हम रेड लाइन बस सर्विस नहीं चलाएंगे। जैसा अभी कहा कि एरिस साइन के लोग रैश होते हैं ड्राइविंग में, लॉर्ड ऑफ एरिस साइन इज मार्स। और ऐसे ही जो रेड कलर है वो भी मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो such people, they become very rash in driving, and particularly those people who are not qualified, not trained, not disciplined. Once I was saying the same thing in a TV interview. Then the anchor asked me कि जन साहब आप क्या बात कर रहे हैं कि बॉम्बे में तो सारी रेड लाइन सर्विस है, वहां तो किसी ने बैन नहीं किया उसको, तो दिल्ली में क्यों बैन करना पड़े? आप जो कह रहे हैं शायद गलत है बिल्कुल जो है। Then I told him that, have you ever gone to Bombay? Have you ever traveled in that bus service? जब कंडक्टर वो थांबा कहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बस में चढ़ जाए। They are so well trained, they are so disciplined. तो मंगल अगर डिसिप्लिन्ड वे में काम करता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, then do very well. और अगर उसके ऊपर से आप डिसिप्लिन हटा लीजिए, उसको ट्रेन मत करिए, they behave like a mad person. They are really rash persons actually. आप देखिए जो भी हमारा जो डिफेंस फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। That's why they go to that type of job actually. और पुलिस फोर्स से आप डिसिप्लिन हटा लीजिए किसी दिन, then you see how they will behave. या डिफेंस से आप डिसिप्लिन हटा लीजिए, then you see how they behave. तो जो मंगल के लोग होते हैं, मार्स के लोग होते हैं, अगर उनके ऊपर डिसिप्लिन इम्पोज रहता है, then they do very well. और जब उनको डिसिप्लिन हटा देते हैं या उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो आती है। Now, the examples I gave it to you because so that you can know that how this entire world is using this knowledge in a very, very useful manner. But the only problem is about creating awareness. अब हम लोगों को डे टू डे बेसिस पर बहुत लोगों से डील करना पड़ता है। शादी की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो बिजनेस में, या हमें डे टू डे लोगों से डील करते हैं। और अगर हमको पता लग जाए कि दूसरे व्यक्ति का क्या नेचर है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या टेम्परामेंट है, तो उसका हमें बहुत फायदा हो सकता है। हम लोग बिजनेस में जो लोग हैं डे टू डे पार्टनरशिप करते ही हैं, मैरिज में हम लोग अननोन आदमी के साथ शादी करते ही हैं, बट हमें पता लग जाए कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या टेम्परामेंट है, उसका क्या एप्टीट्यूड है, क्या उसके वोकेशन है, क्या उसकी मेंटल कैपेबिलिटी है, then we have a wonderful idea about that person before dealing with him. तो हम अपना टाइम क्यों खराब करेंगे कि उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया? Why that will happen? और particularly in the marriage, and you know that आजकल बिना हॉरोस्कोप मैच करे कोई शादी नहीं करता। और कुछ दिन पहले एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सर्वे किया गया, दैट इज विमेंस कॉलेज। तो वहाँ सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया लड़कियों से कि वुड यू लाइक टू गेट योर हॉरोस्कोप मैच्ड बिफोर मैरिज? यू नो व्हाट वाज देयर रिप्लाई? 90% of the girls said that they will not marry without matching of the horoscope. It is so important that 90% of the educated girls of Delhi University, it was their view. अभी कुछ सिटीज हैं इंडिया के अंदर कि जहां भी जब बच्चे पैदा होते हैं, they go for C-section only.
and they get the right muhurat from some astrologer, and without that they don't go for cesarean actually. And कुछ सिटीज ऐसे हैं जो 100% लोग बिना एस्ट्रोलॉजर से बात किए हुए बच्चे राइट टाइम पर पैदा करते हैं. तो एक अवेयरनेस आ रही है, ऐसे नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, बट धीरे धीरे ये अवेयरनेस आ रही है, लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है, एंड दे आर डूइंग इट इन अ वेरी गुड मैनर, वेरी यूजफुल मैनर. हम हर आदमी को आजकल जो हमारा टेंडेंसी है, या पहले जो थोड़ी दिन पहले टेंडेंसी थी कि हर बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, भले उसका एप्टीट्यूड हो या ना हो. बट एस्ट्रोलॉजी इज ए नॉलेज by which you can at the time of birth can tell what is the aptitude of this person, what is the evocation for this person, what is the mental strength of this person, what is the health, what is the personality, what is the temperament, that you can tell at the time of birth. तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं कि किस फील्ड में इसको एजुकेशन दी जाए, कौन सा प्रोफेशन परस्यू किया जाए, तो एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइड्स अ वंडरफुल गाइडेंस. और जिसमें आपका एप्टीट्यूड है उसको एजुकेशन को परस्यू करेंगे, उस प्रोफेशन को परस्यू करेंगे, definitely that will be much more useful than just becoming doctor, engineer without having any aptitude for that. तो आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है, या जो मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ बार बार, it can be increased many-fold just by knowing the aptitude from your birth chart, by giving the same type of education, pursuing the same profession. You can do wonders in the life. There is no doubt about it. ऐसे ही हम लोग और भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक जनरली क्वेश्चन आता है कि हम सर्विस करें या बिजनेस करें. Many people they come कि we want to do business. Horoscope can tell कि आपको बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, whether you will be successful in the business or not. No other knowledge will tell you. No other subject can tell all these things. एक ज्योतिष ही एक ऐसा ज्ञान है आपके पास जो आपको करेक्टली बता देता है कि बिजनेस आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. और बहुत से लोग आते हैं कि आजकल एवरीबॉडी इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, विदाउट नोइंग एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन दैट. एंड आई गेट लॉट ऑफ फोन कॉल्स कि जब हमको 200 करोड़ का लॉस हो गया, 300 करोड़ का लॉस हो गया, सुसाइड करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं. और मैं बता सकता हूँ कि एक ज्ञान है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि आपको whether you should venture into this field or not. और उससे बहुत क्लियर पता लग जाता है कि अगर आप स्पेकुलेशन में आपको गेन होगा या नहीं होगा, या आप अननेसेसरीली अपने टाइम एंड एफर्ट्स वेस्ट करेंगे. तो आपको जब पता लग जाता है कि स्पेकुलेटिव गेन है आपके लिए नहीं है, then you pursue, otherwise why you should go in that field actually. And not only that, you come to know about the right share कि कौन से फील्ड के शेयर आपको सूट करेंगे. वो कोई नॉलेज नहीं बता सकती, but astrology can tell you all those things. Even we talk about astro fashion, जो आजकल बहुत प्रिवलेंट हो रहा है कि फैशन के क्षेत्र में भी हम इस ज्ञान का कैसे उपयोग करें. And it is doing wonders and lot of people are following this worldwide. हम कौन सी ज्वेलरी पहने, कहाँ पर, कौन सा जेम कहाँ पर पहने, कैसे कपड़े पहने, किस रंग के पहने, क्या टेक्सचर होना चाहिए उनका. And all these things that can play a wonderful role in your life just by having the clothes which suits you, the stone which suits you, the jewelry which suits you. आपको क्या करना है, कपड़े सबको पहनने हैं, अच्छे भी पहनने हैं, उसको उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, and it can have a wonderful effect on your life. और
लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, और बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया में अब इसका एक फॉलोइंग चल रहा है कि एस्ट्रोफैशन के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इट्स वेरी एडवांस्ड सब्जेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जन्म के समय आपको बता देता है, जन्म के समय कि आपको बॉडी के किस पार्ट में और क्या प्रॉब्लम होगी, किस समय होगी। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा ज्ञान है या कौन सा ऐसा मेडिकल साइंस है कि जब बच्चा पैदा हो तो उस टाइम बता दे कि इज गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। नोबडी कैन टेल, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉलेज which can tell you at the time of birth कि आपको लाइफ के किस पार्ट में, बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम होगी। और जब आपको पता लग जाता है कि यू आर लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, आप शुरू से ही उसको लाइफ को मोल्ड कर लिए अकॉर्डिंगली। मान लीजिए पता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम इंडिकेटेड है एट दिस एज, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू कन्वर्ट योर लाइफ अकॉर्डिंगली। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों होगी, काफी हद तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो it's a wonderful tool for self management and particularly in the field of medical astrology. अब जहाँ तक जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सीरियस हैं। अगर हम इवन हार्ट की बात करें तो आपको ताज्जुब होगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी किया था इन 2010, and what they found that if you see the total heart patient in the world, 60% of them they exist in India alone, and they said that India is the capital of the world, the heart patient of the world actually. और उन्होंने जो conclusion draw किया, seeing all the habits of the Indian people, they came to know that they predicted rather कि within few years everyone in India, whether it's a child or a old person, will have heart problem. Everyone, they said actually, and this is happening also as we see that. और जब इतनी सीरियस प्रॉब्लम है और हमें पता लग गया जन्म के समय या पैदा होने के बाद कि इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है या होगी, तो अगर हम लाइफ को थोड़ा सा भी उसके हिसाब से चेंज करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, और क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, आप उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आई डोंट एग्री विद देम बिकॉज एस्ट्रोलॉजी डजंट लीड यू टू द फैटलिज्म, इट डजंट मेक यू भाग्यवादी। और जो प्लैनेट की पोजीशन होती है आपके हॉरोस्कोप में, दैट ओनली इंडिकेट्स द ट्रेंड, इट्स नॉट ए कॉज कि ऐसा होने की संभावना है, दैट्स ऑल। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मान लीजिए आप अमेरिका में हैं और आप अपने डे को प्लान कर रहे हैं, तो व्हाट यू डू, यू सी द वेदर फोरकास्ट ऑफ ईच आवर एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू प्लान योर डे। कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, आप सब काम पूरी तरह से कर पाते हैं। सेम सिमिलर पोजीशन इज विद द प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप। प्लैनेट इज नॉट द कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लैनेट ओनली गिव्स यू गाइडेंस कि दिस इज लाइकली टू हैपन। प्लैनेट बता देगा आपको कि आगे गड्ढा है रास्ते में, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि उस गड्ढे में कूदना है या इधर उधर से निकलना है आपको। दिस इज व्हाट द प्लैनेट्स डू। जैसे हम आपको बुखार होता है किसी को भी, हम थर्मामीटर का यूज करते हैं और थर्मामीटर से हमको पता लग जाता है इतना बुखार है। तो थर्मामीटर ने क्या किया, इट्स नॉट ए कॉज ऑफ फीवर, इट्स ओनली रिवील्स द फीवर। सेम एग्जैक्टली सेम इज द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स कि प्लैनेट जो है वो कोई कॉज नहीं होते कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का, वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं कि ये चीज होने की संभावना है। एंड दे लीव इट एंटायरली टू यू कि व्हाट यू डू। जैसे हम बुखार को देखकर हम अपना इलाज कराते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, खाना पीना ठीक करते हैं, उसी तरह से ये प्लैनेट भी वही रोल, एग्जैक्टली सेम रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। ऐसे ही जब ब्लड प्रेशर की बात हुई एंड
data is really disastrous. If you listen to that, you will understand what is the problem. So serious problem. Every third Indian over the age of 18 has a suffering from blood pressure. Every third Indian. And उसमें कहा कि उसमें से 60% को तो पता भी नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर है उनको. And this blood pressure जो WHO ने स्टडी किया था, उसने कहा था कि this is one of the cause of leading heart disease in India. Everybody is suffering from hypertension. Diabetes की बात करें तो again they already said that India is now the diabetic capital of the world. और इस समय जो संख्या है लोगों की जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, that is around 7 crore, 70 million in India. Those who are taking insulin injection, they survive only on insulin injection. So they declared that India is the diabetic capital of the world. Suicide की बात करें हम तो कहा गया कि करीब 3 लाख लोग every year they are dying because of suicide, committing suicide actually. और आपको मालूम है कि जो 3 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, this is the 1/3 of the total suicides made in the world, and this is double the number of suicides in China. हर आदमी इतना परेशान है, suffering from mental disorder, suffering from hypertension, suffering from depression, कि सुसाइड रेट जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है. और इसीलिए जो है हम जब एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और हमको पता है कि किन प्लैनेट से ये टेंडेंसी डेवलप होती है, किन प्लैनेट का हम कुछ भी थोड़ा सा भी रेमेडी करके अपने हार्ट की प्रॉब्लम को बचा सकते हैं, किन प्लैनेट का हम थोड़ा सा रेमेडी करके अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को बचा सकते हैं, किस तरह से हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं. तो वी कैन डू वंडर्स as far as your health is concerned. और मेरे साथ तो हुआ. That's why I got interested in this knowledge. Otherwise, I didn't know even the ABC of this knowledge. I used to have serious migraine problem, and I used to be admitted only because it was very, very severe actually in the hospital. Or you know that there's no treatment of migraine in the world. और हम लोगों ने जब ज्योतिष पढ़ा और छोटे छोटे उपाय करके आपने देखा कि हमने उसको पूरी तरह से काबू कर लिया. एंड जस्ट लीव माइग्रेन, बट आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ हेडेक नाउ. दिस इज ऑल बिकॉज द रेमेडीज ऑफ दिस सब्जेक्ट. एट दिस एज आई एम हैविंग नॉर्मल आई साइट. कैन यू बिलीव? नो डॉक्टर्स बिलीव. किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली. बट आई डोंट यूज स्पेक्स. आई हैव अ नॉर्मल आई साइट. एंड सरप्राइजिंगली आई यूज्ड स्पेक्स फॉर 20 years व्हेन आई वाज अ यंग बॉय. उसके बाद पूरा ठीक होना, ये ऐसे ही नॉलेज का कमाल हो सकता है और कोई साइंस आपको हेल्प नहीं करेगी. और प्रॉब्लम क्या है जो हम लोगों को बदनामी मिलती है, या people say a lot of things about astrologers. First thing is there is no formal education given in this subject. और जब तक फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं. एक मेडिकल MBBS करने के लिए आपको 5 साल का समय लगता है, और 5 साल पूरा करने के बाद nobody will come to you for treatment. कहते हैं MBBS इसके पास नहीं जाना हमें. He has to continue further studies. जब कम से कम 10 साल की स्टडी कर लेता है, जब वो ट्रीटमेंट करने लायक बनता है. और हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं कि एक रात को किताब पढ़ी और अगले दिन से वी ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग प्रेडिक्शंस. तो बदनामी तो होगी, बिकॉज वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द राइट नॉलेज. और जब तक कि राइट नॉलेज नहीं मिलेगी लोगों को, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे,
जब तक इस ज्ञान का सही उपयोग नहीं हो सकता। और दूसरा देखिए कि जब भी कोई अपना हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आता है हमारे पास, he wants to know each and everything of the life from A to Z. हर चीज का आप जल्दी से बता दीजिए कि मैरिज का क्या है, प्रोफेशन का क्या है, कब बीमारी होगी, कब ये होगा, कब वो होगा, एंड यू वांट द आंसर इन 2 minutes. How it is possible? It's not an easy. And even for horoscope matching, जो लोग करते हैं कि आपको गन मिलान करके बता दिया इतने पॉइंट मिल रहे हैं, आप शादी कर लो, एंड आई टेल यू दैट इज ऑल यूजलेस. उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है. But 95% of the people, they go for marriage only after seeing that total number of points. 95% people, they will not come to me. They will go to some astrologer sitting in the temple who doesn't know more than this कि point मिलाने हैं, जबकि point का कोई relevance है ही नहीं आजकल के time में. Point बने थे जब there used to be male dominated society, और उसमें पर्पस था कि लेडीज को कभी हावी नहीं होना चाहिए फैमिली अफेयर में. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अष्टकूट मिलान बनाया गया था. नाउ सोसाइटी हैज कंप्लीटली चेंज्ड. देयर इज नो मेल डोमिनेशन. वी टॉक ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल फीमेल्स आर इंडिपेंडेंट नाउ. सो व्हाई दोस थिंग्स शुड बी मेड एप्लीकेबल. आई हैव बीन टॉकिंग इन लॉट ऑफ फोरम्स कि वी शुड जस्ट remove from this astrology all this gun milan and all those things. But even then, I tell you that 95% of the people, they go for marriage only after seeing this astkut milan. लेकिन पता नहीं किसी को भी कि हमें कैसे करना. एंड हॉरोस्कोप मैचिंग इज नॉट ए सिंपल थिंग कि आप आए और 2 मिनट में बता दिया आपको कि शादी कर लो. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. लेकिन नॉलेज कितने लोगों को है? जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का एक माइंड सेट है कि जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है वो ही ज्योतिष है. ये तो पैंट कमीज पहने हुए, हाउ ही कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर? ही इज एन इंजीनियर, ही कैन नॉट बी एन एस्ट्रोलॉजर. तो हम उसी के पास जाते हैं और उसको मैं बताता हूं कि उसको एबीसी भी नहीं आता. कि एबीसी भी तो पता हो. उसने तो सिर्फ पंचांग ले लिया अपने पिताजी से और उसमें देख लिया कि वो गुण मिलान कहाँ करते हैं और बता दिया आपको पॉइंट. और फैक्ट ये है कि गुण मिलान का कोई रेलेवेंस है ही नहीं आजकल. हमने कोई रिसर्च नहीं की इस फील्ड में. हम कोई सिस्टम अपना चेंज नहीं करना चाहते. अभी there was a conference, I was talking all the same thing in that conference. Some people they got very angry. तो जान साहब, आप ज्योतिष के सिद्धांतों में आप कोई चेंज नहीं कर सकते. अगर ज्योतिष के सिद्धांतों में चेंज करेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा. दिस इज व्हाट दे सेड एक्चुअली. मैंने कहा कि ज्योतिष कहता है कि देश पात्र काल के हिसाब से आप सिस्टम को चेंज करिए. एवरी नॉलेज सेज दैट इट हैज टू बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द देश पात्र काल. टाइम के हिसाब से उसको चेंज करिए. और हम टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? आई गिव देम एन एग्जांपल कि आई वेंट टू इटली, आई थिंक अबाउट few years back. There was a course in ILO. So there was a Russian girl. So she came to know somehow that this man knows astrology. She came to me that I'm already married and I want to know that when I'm going to have a second child. I saw her horoscope and told her that during this period you may have the second child. And you know what was the reply? With whom? I was shocked. I asked her, what do you mean? She said, with my husband or with somebody else. Then I thought, yeah, I'm in Europe, so this is possible, maybe possible actually. And इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे सकते जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे. And same thing happened when I was posted in Calcutta. One lady came and she asked the same question, exactly same question. Then I came to know that it's happening in India also. Indian people can also ask the same questions. But कोई आंसर नहीं है. मैंने उनको कहा कि आप कैसे आंसर दोगे ऐसे क्वेश्चंस का जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे. लेकिन नहीं मानते. वो तो कहते हैं नहीं, उनको क्योंकि आता ही नहीं है उनको. और साइंस ने क्या चेंज नहीं किया. डिफरेंट थ्योरीज नहीं आती फ्रॉम टाइम टू टाइम.
theories, scientific theories, they keep on changing. बट हम लोग नहीं तैयार हैं, वो कहते हैं कि अनर्थ हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल शादियां नहीं हो रही, और कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने का ये टाइम है, और इस टाइम में शादियां नहीं होती, शादियों के लिए इसको मना किया गया। आई आस्क लॉट ऑफ पीपल कि क्यों नहीं करते हो आप शादी इस पीरियड में? सबने कहा कि देवता सो जाते हैं 4 महीने के लिए। इट्स वंडरफुल कि देवता भी 4 महीने के लिए सोने लगे हैं। और देवताओं का जब हमने वास्ता दिया तो एवरीबॉडी एग्रीड कि हाँ कुछ ना कुछ धार्मिक कारण है, लेकिन रीजन क्या है? दिस इज द रेनी सीजन, और पहले टाइम में हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी कि अगर रेनी सीजन है तो देयर वाज नो अरेंजमेंट, बिकॉज मैरिज यूज्ड टू बी ऑन द रोड्स और द पार्क्स। ये बैंकेट हॉल नहीं थे, होटल नहीं थे ठहराने के लिए लोगों को। अब टाइम चेंज हो गया है, we have all the facilities, we can do the marriage in the even the rainy season. So what is the harm? Why don't you change your principles? Why don't you allow the marriage during this period, जिससे कि लोग एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वर्क? लेकिन नहीं, उनके लिए तो देवता जी सोए हुए हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में शादियां नहीं होती। आप देखते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का जो टाइम है उसमें हम शादी वगैरह नहीं करते या कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करते हैं। So when I started reading the subject, I asked hundreds and hundreds of astrologers, what is the reason? Nobody could tell. कोई कहता तारा डूबा हुआ है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो। मैंने कहा है हाँ, कौन सा तारा डूबा हुआ है? But even astrologer could not explain. And being a student of science, I kept on asking with a lot of people. और जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जब तक मैं पूछता ही रहता हूँ। तो वन ऑफ माय गुरु, ही यूज्ड टू टीच अस। तो एक दिन वो बोले कि जैन साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसका कोई रीजन नहीं है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि दिस यूज्ड टू बी द टाइम ऑफ मैक्सिमम कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया। ये टाइम ऐसा है जब नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। और पहले टाइम में जब हम लोग किसी के घर पर जाते थे तो अपना बोरी बिस्तर लेके जाते थे, कोई अरेंजमेंट नहीं होता था उसके यहाँ पर, ना ही ठहराने का अरेंजमेंट है। और ऐसे टाइम में अगर शादी करेंगे या कोई ऐसा बड़ा फंक्शन करेंगे तो सबको इनकन्वीनियंस, और दैट वाज द वैलिड रीजन कि इस वजह से नहीं कर रहे हैं। और सुनते रहिए कि बहुत ही अशुभ समय है। अशुभ समय किस लिए है? देयर इज नो रीजन, you have to understand the reason कि why it is अशुभ। और जब तक हम इनको चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर नॉलेज नहीं बढ़ेगी इस विषय के बारे में, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और उसके बाद हमें इस विषय का उपयोग करना है। अब देखिए कि एवरीवेयर वेरेवर वी गो, कहते नहीं नहीं नहीं, इस ऑकल्ट सब्जेक्ट, इट नीड्स इंट्यूशन, एंड विदाउट इंट्यूशन यू कांट बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर। Everybody will say the same thing, and I told them to just read ki what is the meaning of learning, how you learn actually. और जब आप देखेंगे लर्निंग की डेफिनेशन या मेथड ऑफ लर्निंग, यू फाइंड 3 methods: perception, observation and intuition. Intuition is a process of learning. It's not something divine actually. It's a process of learning. और कैसे हम करते हैं? आप जो हमारा माइंड है उसका हम मैक्सिमम 10% इस्तेमाल कर पाते हैं थ्रू आउट द लाइफ, 90% वेस्ट हो जाता है। तो व्हाट वी ट्राई टू डू विद द मेडिटेशन और वेयर दिस इंट्यूशन गेट्स इन्वॉल्व्ड, वी ट्राई टू ओपन अप आवर अनकॉन्शियस और द सबकॉन्शियस माइंड। और जैसे ही हम अपना माइंड का यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, और जिस दिन आपने 10 से 20% कर दिया, यू कैन डू वंडर्स इन द लाइफ। कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम
10%, 7-8% ही यूज कर पाते हैं। और इवन इन द मैनेजमेंट बुक्स दे से हॉट एयर बैलून अप्रोच कि विदाउट इंट्यूशन यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर। आप मैनेजर अच्छे हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी चीजें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब ही हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल जैसे आप लोग भी हैं, दे आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, और जब वो सीखेंगे तो नेचुरली एक अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड, दिस विल बी यूटिलाइज्ड इन अ मोर यूजफुल वे। एंड as I told you that from the very beginning you know what is going to happen with you, और उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए लाइफ में, उसके हिसाब से लाइफ को प्लान करिए। और बहुत समय मिलता है आपको, बचपन से स्टार्ट कर सकते हैं आप, एंड यू कैन मोल्ड योर लाइफ इन अ वंडरफुल वे। यू कैन improve your efficiency, efficacy, productivity manifold. So this is what एस्ट्रोलॉजी कैन डू। और हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। और एक अवेयरनेस बहुत आई है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं आई है। जैसे मैंने कहा कि चाइना में एडवर्टाइजमेंट दिया कि वर्गो साइन पीपल नॉट अप्लाई। अमेरिका में बहुत रिसर्च हुई एंड दिस हैज बीन पब्लिश्ड इन द अमेरिकन मेडिकल जर्नल कि वहां पर 2 वार्ड में पेशेंट रखे गए हॉस्पिटल में, एक वार्ड में प्रेयर की गई और एक वार्ड में नहीं की गई। तो उन्होंने पाया कि जहां प्रेयर हुई वहां पर लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए, वहां पर लोग जो है बहुत जल्दी ठीक हो गए, और जहां प्रेयर नहीं हुई वहां पर देर लगी ठीक होने में। तो जो हम बात करते हैं अपने मंत्रों की या रेमेडीज की, तो उनका इफेक्ट होता है, उनके वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है, और बहुत अच्छा यूज होता है। क्योंकि मैंने तो बहुत देखा अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, छोटे छोटे से उपाय हैं, आप दान करने का, पूजा करने का, कोई जैम पहनने का, सिंपल रेमेडीज कैन प्ले वंडर्स इन योर लाइफ। और जैसा हम पढ़ेंगे भी इस क्लास में आगे सेशंस में कि हम दान करते रहते हैं, and it's our habit, and we always think that we are going for a good cause and it will have a positive effect on us, but the fact is कि दान भी आपको देख के करना चाहिए। अगर आप किसी गलत चीज का दान करेंगे that may be disastrous for you। गिफ्ट हम देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्लैनेट की पोजीशन को ध्यान में रख के हम करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। क्या हमें प्रेयर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी सेल्फ मैनेजमेंट में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। एनीवे वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। और हम लोग वी विल हैव टोटल 1 session we had today, we have now 14 more sessions, and from the next session we will start the basic thing about this knowledge, astrology, and we will keep on progressing, and we will try to cover almost all the subject of this knowledge. So you just have an overview. You can't be expert, but you have a full knowledge about what this knowledge is. So with that I finished, and I request now, I think I put the ball in your court कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है कॉलेज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। सर हर बार संडे को ही होगी क्लास? सैटरडे संडे। We will have 2 classes, one on Saturday, one on Sunday, and timing will be same, 4 to 5:30. Okay. सर मैं तो पहली दफे हेलो, हाँ चौधरी साहब बताइए। हाँ मैं तो पहली दफे इसको अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल सेशन। तो आई थिंक कि आगे आने वाला जो 14 सेशन है that will also be good and knowledgeable. You will learn a lot of things actually, and very simple things. And I always say that Jyotish is a very common sense basically. And once you understand the basic nature of the planets and the science, that it is nothing. It's such a common sense. You can make any type of predictions. And very interesting, very interesting.
जैन अंकल, आई हैव अ क्वेश्चन. Yeah. भावना, आप बता रहे थे कि चाइना में भी जैसे जॉब एप्लीकेशन में बोला कि वर्गो साइन नीड नॉट अप्लाई. Correct. Are you alluding to the moon sign Virgo or the sun sign Virgo? नहीं, basically they are concerned with the sun sign. China वगैरह में they are not so bothered about moon sign. But as far as we in India are concerned, we are mainly concerned with the moon sign only. Okay, understood. Yeah. Thank you. I had a quick question. This is Ritika here. Yeah. Where do you get the astrological calendar? Sorry, it's a very novice question because I know very little. Where do we get the astrological calendar? Like, how do we know when is Purnima? You were talking about. This is the Panchang actually. We call it Panchang. These are 5 elements. And this Panchang is the local, if you are staying in a particular place, so you can get the Panchang of that place because Panchang will differ from place to place. Okay. Yeah, so you have to get the Panchang of that place. Otherwise, you can use internet if it is not there in Singapore. So hoga, because Singapore, a lot of Indians are there. So naturally, they might be having the local Panchang there. Okay. All right. Thank you. Yeah. Any other question? I have one more, Rajan uncle. So when we look at our computer horoscope, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं on the cover page, like bhav at birth, Karan at birth. आप उस सब का meaning बताएंगे हमें during the classes? We will discuss everything so that you have an overview. And I tell you, whatever is written in the computer horoscope, each and everything is very important. Each and every word written over there is important, and that has to be used for making predictions. Understood. Yeah. Thank you. Any other clarification? In horoscope में place of planet is very important. Place of? Planet. Place of planet. हाँ, या मतलब जैसे गुरु किस उसमें बैठा हुआ है या बुध किस में बैठा हुआ है, शनि किस में बैठा हुआ है. देखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि अब नेक्स्ट क्लास से आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया होगा कि देयर आर 12 साइंस ऑफ द ज़ोडिएक, एरीज, टॉरस, जेमिनी, लियो एंड ऑल दोस थिंग्स. और 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं हॉरोस्कोप चार्ट में. वो आपको नेक्स्ट टाइम से पता लगेगा. और बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. वन इज द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन द ज़ोडिएक. ज़ोडिएक में किस साइन में है, एंड आपके हॉरोस्कोप में किस हाउस में प्लेस्ड है. Both are equally important. Rather, house is more important than the position of planet in the zodiac. दोनों चीजें important है. वो हम आगे देखेंगे भी कि जब हम डिस्कस करेंगे about the signs and the houses, then you find that both are equally important. Okay. Sir, Yeah. 14 classes में हम predict कर पाएंगे? Pardon? Horoscope. 14 क्लासेस जो हमारी सेशंस होंगे, इसके बाद हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कोई भी हॉरोस्कोप देखकर? अब उस जैसे कहते हैं ना, एक लॉन्चिंग स्टेज पर आ जाएंगे. हाँ. फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हैं उसको. बट यू हैव द फुल नॉलेज फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन आल्सो. थैंक यू. बट नेचुरली थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो काउंट करता ही है इन सब चीजों में. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, you will be better in making predictions. You will be more accurate in making predictions. There is no shortcut of experience. हाँ जी. There is no shortcut of experience. Correct. Sir, do you suggest any reading material that we should read along with your sessions? कोई आपकी book हम read करें साथ में, will that be more beneficial? हाँ, you can read that book because I have also written a book actually, and you can get it from me or even from the market also. So, book. So, what is the theme, title of the book? The textbook of astrology. Okay, sir. That you can get from me, or even from the market also you can get it. Okay, thank you. Or any book, basic book on astrology will do. Okay, sir. Yeah. Sir, there's a question, Vidit here. Ji. By the time this 14-15 sessions are going on, and it's going to be like something like 2 to 3 months, do we need to do some observations around us while we are getting sessions from you and learning about the subject?
So they also need to have our eyes and open for to view things differently during this time. बिल्कुल, आप अपना अपना देखिए, चार्ट पे ध्यान रखिए अपने और अपने फैमिली मेंबर्स का, और धीरे धीरे एक असेसमेंट करिए आप, जो जो चीजें बताई जाती हैं उनकी आप पोजीशन अपने उसमें देखिए, हॉरोस्कोप में या डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें बताई जाएंगी, वो कैसे हम यूज करेंगे, तो उससे एक थोड़ा सा एक बेटर आइडिया भी होगा और थोड़ा सा आपको एक पता भी चलता जाएगा कि ये चीजें और एक्चुअली में होती भी हैं, नहीं भी होती। ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि एक बच्चा पैदा होता है तो वी रन टू द एस्ट्रोलॉजर, और 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उस टाइम पूछने के लिए। आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है किस पाए में पैदा हुआ है। आप किसी को भी पूछिए, होगा पाया बता दो जल्दी से, और हम कहेंगे चांदी के पाए में हुआ, तो ही फील्स वेरी हैप्पी। दूसरा कहता है कि मांगलिक तो नहीं है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन होता है गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं पैदा हुआ। हम लोग डेली देखते हैं अपनी लाइफ में कि जैसे बच्चा पैदा होता है भागते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में तो बच्चे का बर्थ नहीं हुआ। जैसी डेथ होती है तो हम भागते हैं कि जल्दी से बताओ पंचक तो नहीं चल रहे हैं। तो ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए, गंडमूल नक्षत्र क्या है, मांगलिक क्या है, पंचक क्या है, पाया क्या है, एंड व्हाट रेलेवेंस दे हैव इन योर लाइफ। भागते हैं हम, जैसी डेथ होती है तो एकदम से भागते हैं, जल्दी से पहले पूछ के आ जाओ कि पंचक तो नहीं चल रहे हैं। What is Panchak and what relevance it has in your life? Why we are so concerned? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, but once we have an idea, then we can have a better grasp on these things. Right. Thank you. Anything else? Uncle, जैसे कि how do we get a computer horoscope? Like my friend Ritika may not have one. There are a lot of softwares available and you can download them free of cost. And one of the... Is there any you will recommend? कोई आप recommend? Yeah. One of the very good software is this one. जैसे बताइए क्या नाम है उसका? जगन्नाथ होरा। जगन्नाथ होरा करके सॉफ्टवेयर है, you can download free of cost and that will make all calculations for you. Yes. Yeah. और भी बहुत हैं, even on your phone you can download number of softwares. They will make all calculations for you. Thank you. Chaliye, we have all wonderful people in the group, so we'll continue. I think we'll have a very beneficial, useful discussions. Or whatever you have in mind, any clarification, any doubt, so I request that all of you should come prepared and don't hesitate to ask any question. And I always feel happy to reply that question. I will try to reply that question as far as possible. But good questions should come from your side actually. Okay then, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good night. Thank you so much, Ji. Thank you.